हेलो। हाँ जी, तो let us start with the very first topic of the class 10, that is real number. Real number. Before starting this chapter, first we have to recall what we have studied in class 9. Class 9, we have studied about the number system. That is all about real number system. Is it? नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था all numbers like natural number, which is said to be now counting numbers. This is what? Counting number. Then whole number. What is new in whole number? Just we have to add one more number, digit 0, in the set of natural number. Is it? Natural number में क्या था? Counting. Count तो हम 0 से करते नहीं, ये था. Now, when the whole number then comes to the integers, the most important part. Integers. ये क्या है? All counting number, including the whole number 0, and their negatives. There is -1, -2, -3, and so on. These are the said to be an integers. Each one is an integer. -2 is an integer, +2 is an integer. So here we can say that all natural numbers are integers, all whole numbers are integers. Okay. Then in class 7, I think, we have studied about the rational number. Rational number. What is it? It is a number in which we can represent it as in the form of P by Q, where P and Q are what? Integers. And the denominator Q should not be equal to 0. Denominator 0 हुआ तो undefined हो जाएगा. That's why denominator should not be 0. Now, sometimes people say that P and Q must be in the smallest form, and you can say co-prime. No, it is not. The definition of rational number is it is a number in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. It is not necessary to write down that P and Q are co-prime, because don't you say that 2 by 4 is not a rational number? Yes, it is a rational number. Yes, its simplified version is 1 by 2. So when you are saying that P and Q are co-prime, that means you are writing the rational number in standard form, in the lowest form. But rational number 2 by 4 भी होगा, 7 by 14 भी होगा, ये भी rational number है. Simplified होकर 1 by 2 हो जाएगा, 7 by 21 भी होगा. ठीक है ना? But whenever you have to discuss about the lowest term, then you have to say that the P and Q must be co-prime. ठीक है ना? But integer जब हम बात करते हैं तो co-prime word या HCF of these two numbers is 1 हम डिस्कस नहीं करते. HCF हमेशा हम नेचुरल नंबर का निकालते हैं, निगेटिव का नहीं निकालते. निगेटिव अगर आता भी है तो उसे हम हटा के पॉजिटिव में देखते हैं. सो co-prime word यूज करना जो है रैशनल नंबर में सही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? There are so many discussion about that. Now, after that, in class 9, a new number we have studied, irrational number. Irrational number. Detail हमने इसमें पढ़ा. 7 में भी पढ़ा था कि those number which are not rational, those numbers which are not आपको बाइक की और सुनाई पड़ रही होगी, कोई बात नहीं. Which are not rational. Rational means which cannot represent as P by Q. इसमें वो रिप्रेजेंट ना होता हो तो उसको कहेंगे irrational number. बेसिकली अगर हम ये कहें
So a number which can not be expressed in the form of p by q is irrational. Now problem is how can you find that number which cannot be expressed in the form of p by q? So we have studied about the decimal representation of the numbers. Sometimes you find that if you divide 8 by 16, you cannot. So you go for decimal. Put a 0 5 times 18. Okay, remainder is 0. Yani the division is stopped. But sometimes when we divide 3 by 1, what do we find? 3 times 9. Again remainder 1. 8 3 times 0 डालने पर 9. It goes on. The division doesn't stop in any step. So 1 by 3 we can represent 0.333 and dot. Okay, here it is repetition. But one we find that terminate, one we find doesn't terminate. So there are two types of decimal representation. First, decimal जो रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर का होता है, पहले हम लोग इसको कहेंगे टू टाइप. वन इज टर्मिनेटिंग एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब प्रॉब्लम इज कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी इन फ्यूचर आए जब ये बात उठी था. जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया आपका 1/3 का, तो यहाँ आया 1.333 डॉट. उसी तरह अगर आप 1/7 से करोगे तो आएगा 0.2 टाइम्स 1 टाइम्स लगेगा, है ना. फिर 4 टाइम्स लगना चाहिए. 2820 तो 2 टाइम्स लगेगा. 60 8 टाइम्स 40 5 टाइम्स एंड देन 7 टाइम्स. यही चीज़ 142857 आई थिंक आपको बार बार आता रहेगा, है ना. जब भी आप देखोगे डिवाइड करके तो ये सेट जो है हर बार आएगा. आप चेक कर सकते हो. 1 से किया, डेसिमल लगाया तो 1 टाइम्स लगा, 30 4 टाइम्स लगा, 28 तो 2 बचा 20 तो फिर 2 टाइम्स लगाया, फिर 60 तो 7 8 जा 56 लगाया, तो फिर 40 तो 5 टाइम्स लगाया, 35 यहाँ 50 तो फिर यहाँ जब 49 लिखेंगे हम लोग 50 से 49 7 टाइम्स लगने के बाद तो फिर से 1 से फिर स्टार्ट हो जाएगा. यानी ये पूरा जो सेट है वो बार बार आएगा, है ना. 142857 142857 142857. सो दिस वेरी नंबर 1/7 अगेन 0.1 क्या था 142857 142857. ये पूरा लॉट रिपीट कर रहा है. तो हम एक बार पुट करते हैं. बार पुट करिए. चाहे हम लोग के ज़माने में ये भी बताया जाता था कि जो जितने टर्म्स रिपीट कर रहे हैं उसके एंड पे डॉट लगा देंगे. बट दिस इज नॉट इन यूज. दिस इज नॉट इन यूज बट नॉट रॉन्ग. चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि गलत नहीं है ना. ये यूज होता था पहले. ये अच्छा है ना. जब हम बात कर रहे थे कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, तो फिर हम लोगों ने जब डिवीजन क्लास 8 में पढ़ा था नंबर्स का, जब आपको 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसमें बताया गया या 14 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया गया, तो ये किसी भी स्टेप पे रिपीट भी नहीं कर रहा था और इसकी जो टर्मिनेशन है वो भी नहीं हो पा रहा था. मतलब दिस इज अनदर काइंड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q. ये p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता. तब क्या हुआ, तो इस पर जब फर्दर रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही
रिपीट कर रहा है, जैसे अभी पिछले सारे केसेस में 2 केस जो हमने 1/7 1/3 लिया, तो उसमें एक सेट जो था इतना वो रिपीट कर रहा था, या उसके पहले 1/3 जो था हमारा 1/3 वो भी रिपीट कर रहा था। दैट मीन्स कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा है वो 2 तरह के हैं। कौन कौन से तरीके के हैं? ये जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये वाला पार्ट है, ये भी 2 तरीके का है। एक रिपीटिंग या रेकरिंग उसको कहते हैं, बार बार अकर करना, और एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। सो कुल मिला के अगर कहें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 प्रकार का हुआ, 3 टाइप्स। वन इज टर्मिनेटिंग, second one is non-terminating and repeating, and third one is non-terminating and non-repeating. There are 3 types of decimal representation. पहला terminating, दूसरा non-terminating and repeating, and third one is non-terminating and non-repeating, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट 2 काइंड जो हैं ये रैशनल नंबर के हैं। रैशनल नंबर आइदर बी टर्मिनेटिंग डेसिमल और ऑफ non-terminating and repeating decimal, but the third kind is the irrational number. Those which are not rational are called irrational number. ये थर्ड काइंड है आपका irrational, ठीक है ना। ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था, इस क्लास 10 में भी इसको पढ़ेंगे। माइंड जो भी हमने बताया है सब आपको देखना है। रिविजिट ऑफ द टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग में पहुंचेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं है, रिकॉल है आपका पिछले चैप्टर साल का। तो ये हमने पढ़ा। अब इसी के आगे फिर आपने पढ़ा होगा कि जब ये रैशनल और ये इरेशनल दोनों अलग अलग हैं, 2 अलग अलग, इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलके एक नए नंबर का सेट तैयार करते हैं जिसको हमने कहा रियल नंबर। मतलब रियल नंबर सर व्हाट, दे आर आइदर रैशनल और irrational, not both. A number can be rational और a number can be irrational. तो एक्चुअली क्या है, अगर हम कहें सबसे पहले नेचुरल नंबर हम बात करते हैं उसको n से लेते हैं, ये हुआ, उसमें एक 0 मिला दिया तो एक नया नंबर आया, उसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं उसको? एक नया नंबर आया उसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है ना। फिर एक नया नंबर आया जो उसमें से शामिल हो गया, निगेटिव भी, तो उसको कहते हैं n और z, समटाइम z से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर से एक नया नंबर आ गया, वो क्या है, सबको शामिल कर, उसको q से डिनोट करते हैं, वो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। मतलब कह सकते हो कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, इज नॉट होल, इज नॉट नेचुरल, बट एवरी नेचुरल नंबर, 1 की बात करें तो 1 को 1/1 से लिख सकते हैं, 5 की बात करें तो 5 को हम 5/1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q फॉर्म, वेयर q 1 है, 0 नहीं है। उसी तरह होल नंबर की भी बात करें, होल नंबर में क्या है, बाकी नेचुरल नंबर तो यही है, 0 नहीं आया तो 0 को 0/1 लिख सकते हो आप, रैशनल नंबर हो गया। इंटीजर भी उसी तरह -1/1 p/q के फॉर्म में। तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर एक्चुअली होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, सारे होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा कोई भी नंबर ऐसा हो गया जैसे 2/3 हो गया, 17/5 हो गया, मतलब जिसको हम इंटीग्रल फॉर्म में, नेचुरल नंबर में या होल नंबर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सके तो हो गया प्योर रैशनल नंबर। एंड फिर एक तीसरी तरह की बात आई जो लास्ट में हमने पढ़ा कि एक और नंबर आया इररेशनल।
तो जब इरेशनल आया तो फिर तो उसको हमको दूसरा कहना पड़ेगा ना, वो तो सेम होगा नहीं। तो वो एक ऐसा आया, उसको कोई लोग क्यू बार लिखता, कोई लोग टी लिखता, जैसा आप लिखो एस लिख दो। और इन सब को मिला के जो नया चीज़ तैयार हुआ पूरा बड़ा, इन सबको कंटेन करके रखा हुआ है, उसको कहा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट एक वर्ड है जो आप हायर क्लासेस 11 में पढ़ोगे, थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे हो तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा जो है डब्बा, इसमें केवल नेचुरल नंबर डालना है, तो नेचुरल नंबर डालना है तो मतलब आप क्या डालोगे? 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ डालोगे? नहीं डालोगे। आप कोई कहें कि एक घर है, उसमें ईमानदार लोगों को डाल दो आप, ईमानदार लोगों के बारे में तो कोई डेफिनेशन है नहीं, कौन ईमानदार है कौन नहीं है, हु इज ऑनेस्ट और नॉट, वी डोंट नो। सो क्वालिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। तो सेट वर्ड्स है, सेट आगे पढ़ेंगे सेट थ्योरी में। तो ये सारे के सारे एक्चुअली क्या है? सेट ही है। एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल W इज सेट ऑफ होल नंबर, I और Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, Q इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, Q बार T और S जो भी जैसा लिखे इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। एंड व्हेन इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर कंबाइन, दोनों के नंबर्स को मिला के अगर एक हम थैले में डाल दें तो वो बन जाता है रियल नंबर। और यही हमारा क्लास 10 का पार्ट है। हम सारे रियल नंबर की बात करेंगे, मतलब हम नेचुरल नंबर की भी बात करेंगे, होल नंबर की भी बात करेंगे, इंटीजर्स की भी बात करेंगे, सब कुछ। फिर स्लाइडिंग फैक्टर वगैरह जो आपने पढ़ा वो अपने जगह पे उसकी बात करेंगे जितना भी। अभी इसमें क्या है, अगले पार्ट में जो हमारा है, यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स को जो पहले से पढ़ा हुआ है हमारा, बट ज़्यादा हम नहीं जानते, उसके बारे में उतना सोचे नहीं। उसमें वेरी फर्स्ट है, जैसे अगर आपसे कहा जाए किसी भी नंबर को, एक मैं बात करूँ, जैसे मैं एक नंबर लिया 70, ठीक है ना, जस्ट स्टार्ट कीजिए इसको हम अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? एनी नंबर, तो ये होगा 2 × 8 + 1, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स लगेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। अगर इसी 17 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 × 5 + 2। अगर इसी 17 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 × 4 + 1 एक्सेट्रा। तो ये क्या, देखो ये एक्चुअली है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, पढ़े हो गए आप। वो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? कि एक डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, एक कोसेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। यही होता है ना, आप पोलिनोमियल में भी पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब देखेंगे किसी भी नंबर को, मान लीजिए से मैंने एक 17 नंबर लिया या कोई भी नंबर, आप पहले एक डिवाइजर को कंसीडर करो, 2, हमने डिवाइजर 2 लिया, तो आप पाओगे कि 2 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो या तो वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे नंबर होंगे? दे आर ऑल इवन नंबर्स, और उस केस में रिमाइंडर बचेगा 0, और जितने भी ऑड नंबर रहेंगे उस केस में रिमाइंडर बचेगा 1। तो यानी कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है, अगर n हमारा कोई नंबर है तो या तो वो 2 से कट जाएगा m, या तो वो 2 से नहीं कटेगा, एक रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। इसी 2 फॉर्म में होगा। अगर हम 2 से बात कर रहे हैं डिवाइड, m कहाँ है? m कोई इंटीजर है, कोसेंट इसको कह सकते हो आप, m इज ए कोसेंट, 2 इज ऑलवेज डिवाइजर, हमने यहाँ पर 2 डिवाइजर के रूप में लिया है। तो कोई भी आप नंबर लो, डिविडेंड लो, कोई भी 17 लोगे तो इस फॉर्म में आएगा, 16 लोगे तो इस फॉर्म में आएगा, 24 लो तो इस फॉर्म में आएगा, 25 लो तो इस फॉर्म में आएगा, इज इट। अब इसी सारे नंबर्स को आप 3 से थोड़ा डिवाइड करके देखो। जैसे शुरुआत के हम 6-7 नंबर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 से अगर इसको डिवाइड करना तो फिर सर इसको 2 से, तो आप क्या लिखते हैं? इसको 2 × 0 + 1, इसको क्या लिखते हैं? 2 ×
1 प्लस 0, इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0, इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 1, इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 3 प्लस 0। तो क्या देख रहे हो, इन सभी केस में जो रिमाइंडर है वो या तो 0 है या तो 1 है। डिवाइजर हमने हमेशा 2 लिया हुआ है। ये क्या है, m की पोजीशन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। आप प्लस ज़्यादा, अगर आपने पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिया हुआ, इंटीजर लिया हुआ है तो प्लस ही रहेगा। सो अ नंबर कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2m और इन द फॉर्म ऑफ 2m plus 1, where m is what, m is any positive integer, you can say। अब इसी चीज को आप क्या करो, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 से डिवाइड करो तो देखो 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 0 प्लस 2, अभी भी 2 टाइम्स क्योंकि 3 से कम है। यहाँ 3 इंटू 1 और 0 रिमाइंडर, यहाँ 3 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ 3 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ 3 इंटू 2 प्लस 0। What you see here? Here you see कि now the remainder becomes 0 1 2, 3 रिमाइंडर आ गए, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। उधर 2 में क्या था, 0 एंड 1 था, 2 था तो रिमाइंडर 0 एंड 1, 3 है तो रिमाइंडर 0 1 2। चलिए थोड़ा एक और चीज देखते हैं, और ये डिवाइजर हमेशा मेरा 3 है और ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर के लिए हमें कोई बात नहीं, आगे आगे। नाउ स्टार्ट विथ सम मोर नंबर। चलिए हम लोग लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, 4 से करते हैं डिवाइड, 4 इंटू 1 प्लस 0, सॉरी 0 1, 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 2 प्लस 0, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 2 प्लस 3। अगला अगर 12 आप लेते तो क्या होता है 4 इंटू 3 प्लस 0। सो फिर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, रिमाइंडर जो है वो 0 1 2 3, डिवाइजर आपका क्या है 4 है, कोसेंट कुछ भी हो सकता है। 4 5 से नीचे अगर लेते, मान लो 1 लेते तो क्या लिखते हैं 4 इंटू 0 प्लस 1। 4 से कम कोई नंबर होता तो उसमें कोसेंट के रूप में 0 हमेशा था, 0 टाइम्स लगा इस तरह से। तो जब 4 से डिवाइड किया हमने तो 0 1 2 3, यानी जो रिमाइंडर आ रहा है, जो हमने केसेस देखे, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से एक कम, मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू, अगर हमने डिवाइजर सपोज कर लो x लिया हुआ है, x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो रिमाइंडर इज एट मोस्ट x माइनस 1, उससे ज्यादा नहीं। यानी इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड एनी नंबर बाय 17, तो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, इट मस्ट बी 0 1 2 3 4 5 अप टू 16, क्योंकि अगर 17 आ गया इसका मतलब आपने डिवीजन में अभी एक बार कम लिया, डिवीजन आपकी करेक्ट हुई नहीं। तो इसी चीज को आपके इस बुक में एक स्टोरी भी है अंडे वाले का, कि एक अंडे वाले का एक का है, किसी से झगड़ा हुआ, उसका गिर गया, पंचायत में गया, जब वो ग्राम पंचायत में, तो उसने बड़ा ही अजीब सा आंसर दिया। उसे पूछा गया हाउ मेनी एग्स वेयर देयर, तो उसे कहता है कि इफ यू काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, मतलब अगर अंडे को आप 2-2 करके रखोगे तो 1 बचा रह जाएगा। इफ यू काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन, 3-3 का झुंड बनाओगे तो 2 बचा रह जाएगा एक्स्ट्रा, 4 में 3 बचा रह जाएगा। इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल। मतलब यहाँ से बात उठती है कि उसके पास जो नंबर है, अंडे हैं, अगर हम 2 का झुंड बनाएं तो 1 बचा रहेगा, 3 का बनाएं तो 2 बचा रहेगा, 4 का बनाएं तो 3 बचा रहेगा, 5 then 4, 6 then
5, and when 7, then nothing less, 0. That means उसके पास जो अंडे हैं नंबर, वो 7 से डिविजिबल है. माइंड इट, 7 से डिविजिबल है, बट 2 उसके पहले जितने भी नेचुरल नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6 उससे डिविजिबल नहीं है. 1 से तो बात ही नहीं कर, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है. इस तरह से उसने पंचायत को बताया. यहाँ जो हमने M, N, Q, P, K, R वगैरह लिया, दे आर ऑल इंटीजर्स, तो हमने अलग अलग नोटेशन के तौर पे लिया हुआ है. अब बताइए कि उसके पास कितने अंडे होंगे. फिर ध्यान से देखना है कि कम से कम 7 है, तो 7 6 जा 42 तो नहीं होगा, 42 तक नहीं होगा, क्योंकि 42 तक से पहले कुछ भी नंबर आप ले लो, तो 5 से अगर हम उसको 42 करेंगे तो वहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 42 आगे बढ़ेंगे. अब 7 से है 49 तक चलते हैं, 49 से स्टार्ट करते हैं, 7 से डिविजिबल है. अब हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको पहले नंबर खोजना है कि जो 7 से डिविजिबल है. तो पहला नंबर 49, ओके. 49 को लेते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 40, अरे तो आ रहा है 4 रिमाइंडर, बट 2 से भी काटेंगे तो लग रहा है कि ओके ठीक है 1 रिमाइंडर बचेगा. लेकिन जैसे 3 में हम लोग यहाँ इसको ले रहे हैं, तो 3 क्या कर रहा है कि 45 टाइम्स तो काट दे रहा है, 45 + 8, 48 भी काट दे रहा है. 3 के केस में ये 3 × 16 + 1 हो जा रहा है. मतलब ये वाला क्राइटेरिया जो है यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ना, यानी 49 रूल्ड आउट. अब 49 के बाद अगला मल्टीपल पे पहुंचिए, दैट इज 56. तो 56 तो 2 से कट जा रहा है, अब 2 से कटना नहीं है, तो ये भी रूल्ड आउट. फिर 63 पे आते हैं. 63 से जैसे ही आप 6 से इसको देख रहे हो, 6 × 10 + 3, तो इसमें तो 3 रिमाइंडर बचना है. बचना कितना चाहिए, बचना चाहिए था 5. सो अगेन 6, ये रूल्ड आउट हो गया. तो 63 के बाद इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाओ. 63 के बाद क्या आएगा, 70. तो ये तो 2 से कट गया, नहीं चलेगा. 70 के बाद 77, 70 के बाद 77, इसको आप 5 से काटोगे तो 5 × 11 + 2, ये भी रूल्ड आउट हो गया. 84, 2 से कट जा रहा है, 2 × 42 रूल्ड आउट, ओके. 84 के बाद पहुंचेंगे 7 से तो 91, ये 3 से आप देख रहे हो, 3 × 30 + 1 रूल्ड आउट, क्योंकि 3 × समथिंग + 2 होना चाहिए. 91 के बाद हम 98 पे पहुंचते हैं, ये 2 से डिविजिबल हो गया, नहीं होना चाहिए था, रूल्ड आउट. 98 के बाद कितना पहुंचते हैं हम लोग, है ना. इस तरह से आप कहोगे कि सर इतना तो बड़ा मुश्किल टाइप का चीज हो गया, लेकिन हाँ ये करना पड़ेगा, है ना. तो 98 के बाद जब पहुंचते हैं हम लोग, तो ये आता है 105. 105 तो 5 से ही कट गया, कितने बार में, 21 टाइम्स, तो ये भी रूल्ड आउट. 105 के बाद पहुंचते हैं 112, ये 2 से डिविजिबल हो गया, सॉरी नहीं चलेगा. उसके बाद आप आइए 119. अब देखिए 2 से भी 1 रिमाइंडर देगा, 2 से 1 रिमाइंडर दे रहा है, ऑड नंबर है तो 1 रिमाइंडर देगा. शुरुआत में मैंने बताया था कोई भी नंबर या तो 2m या 2m + 1 के रूप में होता है, या तो ऑड है या तो इवन है. ये ऑड है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से देखते हैं. तो 3 × 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 × 3 9 and +2, ओके. 3 वाला ओके है. 4 से देखते हैं, 4 × 2 = 8, 3 9, 4 9 and 3, ओके, ये भी सही है. 5 से देखते हैं इसको, 5 × इसमें तो 4 बच रहा है साथ साथ, 15 मतलब 23 and +4, 4 वाला भी सही है. 119. 6 से देखते हैं, 6 × 6 1 = 5 9, 6 1 = 59, 9 10, 54 निकल गया, 5 बचा. ये 6 और 7 से तो डिविजिबल है ही. तो दैट इज द एक सेलर है 109. तो एक्चुअली ये सब आया कहाँ से, वही है ना डिवीजन एल्गोरिथम. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर × कोसेंट + रिमाइंडर. तो इसी को जो फादर ऑफ ज्योमेट्री क्लास 9 में आपने पढ़ा था यूक्लिड्स, तो यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया कि गिवन
positive integers, mind it, positive integers a and b, there exist what? Two another integers, unique integers, you rather can say unique integers. उसका कुछ नाम उन्होंने दिया Q and R. इसको Q से कोसेंट और R से रिमाइंडर का R ले लिया, A और B कुछ भी रख लिया, क्योंकि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों D हो रहे थे, इसलिए उसने A और B को अलग कर दिया. करेक्ट. सटिस्फाइंग A is equal to BQ plus R, where R की जो वैल्यू है is greater than equal to 0 but always less than B. ये उनका स्टेटमेंट हुआ. डिवीजन एल्गोरिथम को नंबर सिस्टम पे उन्होंने लिखा कि given any positive integers, any two positive integers A and B, है ना, there are two another unique integers Q and R, which can be written as A is equal to BQ plus R, A and B already, BQ plus R, Q may be any integers, but R की जो condition है, R either is equal to 0 or greater than 0, but always less than 8. And this very particular statement is known as Euclid's division lemma, है ना. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आप स्टेट कर दो. और ये है क्या? वही डिवीजन एल्गोरिथम है कि नहीं. दिस इज नथिंग बट डिवीजन एल्गोरिथम का पार्ट, लेकिन इसका नाम दिया गया. अब मैं बार बार एल्गोरिथम वर्ड बोल रहा हूं. यहाँ पर लेमा इज एन स्टेटमेंट, एन एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, है ना. तो पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम, तो यू हैव टू से दैट लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, या टेकन टू बी, जैसे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ा आपने क्लास 9th में. हो सकता है इस साल आपको नहीं पढ़ाया गया 9th में, बट यूक्लिड डिवीजन जो यूक्लिड ज्योमेट्री था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स क्या है भाई? एक ऐसे स्टेटमेंट जिसको हमने ट्रू मान लिया है, हालांकि उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना. बहुत सारे आप थ्योरम ज्योमेट्री में देखोगे ऐसा मिलेगा एक्सियम के तौर पे. अब सन हॉट है, लोग जानते, लेकिन कोई प्रूफ करके दिखा पाया क्या? ये कोई स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया, कोई फॉर्मूला ऐसा लगा दिया जिससे प्रूफ हो जाए. अर्थ इज राउंड, मेनी थिंग. और जैसे पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इज टेकन ट्रू. ये उसका कोई प्रूफ नहीं है. हाँ, इसके स्टेटमेंट पे बहुत सारे डिडक्शंस निकले कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड सो ऑन, ठीक है ना. बट फर्स्ट समथिंग हैज टू बी एक्सेप्टेड एज ट्रूथ, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सियम. So lemma is nothing but a true statement, whether it is theorem, deductions or axioms. And algorithm different part का हो सकता है. जैसे अगर हम यूक्लिड एल्गोरिथम की बात करें तो यूक्लिड एल्गोरिथम इज a step by step procedure to find the HCF between two numbers by using division lemma. HCF निकालने का जो प्रोसीजर होगा, यूक्लिड एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम की. और कोई भी एल्गोरिथम क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कहा जाता है, ठीक है ना. तो हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 2-4 क्वेश्चंस करेंगे. नाउ अब कोई भी कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form of 2q. Every positive, वैसे ऐसे कहा कि every integer is of the form 2m
or 2m plus 1 for some integer m, some integer m. ये एक स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग ले सकते हैं. कैसे? हाउ? मान लो कोई नंबर है, लेट a be any positive integer, and 2 is divided. तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो क्या कह रहा है कि अगर a को आप b से डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर आएगा, सॉरी कोसेंट आएगा, और एक रिमाइंडर आएगा जहां रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2, क्योंकि यहाँ आपने b के जगह पे 2 लिया हुआ है. r is greater than or equal to 0 but less than 2. r must be integer. So कोई भी नंबर a को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो 2q plus 0 और 2q plus 1 के रूप में होगा, where q may be anything but integer. So कोई भी नंबर, अब 2q plus 0 को आप 2q लिख सकते हो और 2q लिख सकते हो. So any integer is either in the form 2q और 2q plus 1. आगे जरूर लिखना for some integer q. ये तो स्टेटमेंट थोड़ा ठीक है. एनी इंटीजर लिखोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, 2q आप 2 बदल दोगे तो फिर दूसरे फॉर्म में हो जाएगा. जैसे अगर कहेंगे हम ऐसे, एनी इंटीजर is either 3m plus 1 or 3m plus 2, where m is an integer, where m is any integer. अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कोसेंट को छोड़िए, हमने डिवाइजर बदला. मान लो a हमने नंबर लिया, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें, a लिया और b के जगह 3 लिया, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहा है कि a कैन बी रिटन एज 3q plus r, where r कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन ऑलवेज 3. b से हमेशा कम. तो क्या होगा भाई, r की वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, और या तो 2 होगा. यहाँ पर q लिया हुआ है, इसके पहले हमने m लिख दिया. m हमने लिखा है ऐसे इन जनरल, आप q भी लिख सकते हैं. तो हमने प्रूफ करने के लिए क्या कर दिया, 3q plus 1 और 3q. मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 2m और 2m plus 1 के रूप में हो सकता है. अगर आप 3 एज ए डिवाइजर लेते हो तो द नंबर सेम नंबर कैन बी रिटन एज आदर इन द 3m और 3m plus 1 और 3m plus 2. m लिखिए, q लिखिए, p लिखिए, r लिखिए, डजंट मैटर, है ना. बट द सेम नंबर इफ डिवाइडेड बाय 4 then it is 4m or 4m plus 1 or 4m plus 2 or 4m plus 3. 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर 3 तक जाएगा, where m is an integer, where m is any integer. अब इसी पर्टिकुलर एग्जांपल से हम आपको एक क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या है, 2 तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है वो, कि लेट a be any positive integer, then it is either in the form of 4q or 4q plus 3, 4q plus 1. क्वेश्चन ये है, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer. Q is some integer. Very funny. कह रहे कि अगर वो ऑड है, अभी इसके पहले हमने क्या दिखा कि a अगर कोई भी इंटीजर है, वेदर ऑड और इवन डजंट मैटर, it can be written as these 4 times.
ओनली। सो चल उसी पर चलते हैं। लेट ए बी एनी, अब यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव ऑड, ऑड यहां पर लिखेंगे, वहां ऑड नहीं था, वहां कुछ भी था, बस ऑड इंटीजर एंड 4 इज डिवाइडर। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A must be 4q plus r, where r की जो वैल्यू है greater than 0 but less than 4. That means इस A को हम 4q plus 0 नहीं लिखते हैं और 4q plus 1 और 4q plus 2 और 4q plus 3 लिख सकते हैं। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ गया। 4q वो तो 2 into 2q है एंड 4q plus 2, यहां 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया 2q plus 1 है। अब आप यहां पर बताएं, डोंट यू थिंक दीज टू नंबर्स 4q and 4q plus 2 is clearly divisible by 2? Because q is an integer, so that 2q is also an integer, and so that 2q plus 1 is also integer. Mind it, कोई भी नंबर अगर 2 into m के फॉर्म में है वहां m का इंटीजर होना जरूरी है। रैशनल नंबर नहीं कि हम 2 into 1/5 लिख दें तो भले नंबर जो है 2/5 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना। इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन 2 into 1/5, it doesn't mean that the number 2/5 is divisible by 2, an even number. No, sorry, यहाँ 1/5 is not an integer। यहाँ पर 1/5 जो है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए ऐसे केसेस को हमेशा क्या करेंगे, इंटीजर की बात करेंगे। तो आपको जब भी आप कोई फॉर्म लिखोगे 2 into समथिंग, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि 2q plus 1 क्या इंटीजर है। तो यस, वी नो दैट सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। सो 2 इज एन इंटीजर, q इज एन इंटीजर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। क्योंकि 2q को अभी हमने इंटीजर कहा, उसमें 1 एक और इंटीजर जोड़ दिया, तो 2q plus 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। So what we find that 4q and 4q plus 2 is 2 into some integer. So here 4q and 4q plus 2 are in the form 2m कह दो। That is, आप कह सकते हो आप इवन। सो ए तो हमारा ऑड है, बट ए जो हमारा है इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर तो इवन हो नहीं सकता। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए जो है वो 4q नहीं होगा, ए जो है वो 4q plus 2 भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सो देयरफॉर ए इज ऑफ द फॉर्म what? Either 4q plus 1 or 4q plus 3. You can check it. How can? देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक जगह बताया था, ध्यान रखिएगा। किस जगह बताया था आपको कि कोई भी नंबर जो है either 2m और 2m plus 1 के रूप में लिखा जाता है। 2m और 2m plus 1 के रूप में लिखा जाता है, जिसमें 2m जो है वो इवन नंबर है और 2m plus 1 जो है वो ऑड नंबर है। तो उसके बिना पे आप जो ये आपका आंसर है ये जो आ रहा है, तो आप इसको दिखा सकते हो कि जो 4q plus 1 है that is 2 into 2q plus 1 है। जो 4q plus 3 है उसको आप ऐसे लिखो 4q plus 2 and plus 1, और इनसे 2 कॉमन ले लो 2q plus 1 and plus 1। सो दोनों के दोनों नंबर किस फॉर्म में है? 2m plus 1 के फॉर्म में है कि नहीं है? सो ऑड हो गया। सो एनी ऑड इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3, इज इट? और यही क्वेश्चन अगर आपका बदल गया, क्या बदल गया कि सो दैट पॉजिटिव ऑड के बदले में अगर इवन हो गया, सपोज करिए, तो क्या करेंगे? यहां पर ये सारा कुछ वैसे ही चलेगा, बट
अब यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ जब लिखेंगे तो ये इंटीजर इवन हो जाएगा और ये ऑड हमारा हो, तो ये दोनों इंटीजर इवन हो गए, तो हम कहेंगे कि यस। और कोई भी इंटीजर जो है इवन इंटीजर वो ऑड तो हो नहीं सकता, तो जो यहाँ हमने जिसको रूल्ड आउट किया है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और जिसको हमने एक्सेप्ट किया है इसको रूल्ड आउट कर लेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2m+1। तो अगर वो इवन है तो इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेम क्वेश्चन, वो ऑड की जगह पे ये सॉल्यूशन है, इवन की जगह पे उस तरह का सॉल्यूशन है। Am I right? तो ये एक तरह से आपका क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन, ये तो हमने देखा कोई भी नंबर, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। 3m+2 स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 3m+1 एनसीईआरटी का बुक है। अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा। फिलहाल एल्गोरिथम की बात करते हैं कि एल्गोरिथम हम लोग कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि फाइंड HCF of just I am going to take a simple question, 64 and just 24 by using Euclid division lemma, है ना? मतलब एल्गोरिथम by using Euclid division algorithm, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। इस HCF हम अगले तरीके से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर से भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 64 को आप A समझो और 24 को आप B समझो, ठीक है ना? और इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। तो 64 24 से लगाएंगे 2 टाइम्स लगेगा, बट रिमाइंडर बच जाएगा 48, यानी 16 एज ए रिमाइंडर बचा। हियर जो रिमाइंडर है वो है 16 और 16 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या हुआ, एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए जब HCF निकालते हैं तो हमारा एम होता है कि HCF तभी होगा जब रिमाइंडर 0 पर आए। आपको बताऊंगा, आपने बहुत पहले इसको कर रखा है, इसको सीख रखा है, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो क्या है वो भाई, तो अब क्या करेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो अगले स्टेप में पहुंचेंगे। वो स्टेप हमारा होगा, नाउ टेक ए, जो इस स्टेप में डिवाइजर था उसको आप डिविडेंड बना लीजिए, और जो रिमाइंडर था उसको आप जो ए डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लीजिए, और जो रिमाइंडर हुआ उसको डिवाइजर बना लीजिए, और अगले स्टेप में पहुंच जाइए। और यहाँ पर यूज कीजिए EDL, यूज EDL किस पे, 24 and 16 पे। तो 24 को 16 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स लगेगा, और 8 एज अ रिमाइंडर। हियर अगेन जो रिमाइंडर है 8 को 0 नहीं है। तो फिर से टेक A 16 and B 8, यूज करो EDL किस पे, 16 and 8 पे। 2 टाइम्स लगा और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। रिमाइंडर बिकम्स 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वहां जो डिवाइजर था, उस स्टेप पे जो डिवाइजर था, जो B की पोजीशन थी, क्वेश्चन की नहीं, B की पोजीशन थी। नाउ हियर जो B है वो हमारा 8 है, तो 8 इज द आंसर। 8 इज जो है HCF ऑफ 64 and 24 है। ये यूक्लिड डिवीजन। तो इसमें कई स्टेप आएंगे आपको। अच्छा, जब ये नहीं समझ में आए कि हम क्या, कभी कभी गलती से बच्चे इसको ले लेते हैं, नहीं, तो क्या करो कि जिस स्टेप में 0 आया उसके जस्ट पहले वाले स्टेप में जो रिमाइंडर आया होगा वही HCF होगा, वही होगा। उसमें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि क्या लेना है, 8 लेना है या 2 लेना है, ठीक है ना? तो ये HCF निकालने का। अब देखो इसको आपने कैसे किया हुआ है पहले से, आपको याद होगा। यू कैन यूज लाइक दैट वन, 2 the 48, 16 को डिवाइजर बनाया और 24 को डिविडेंड बना दिया। 1 टाइम 16 8, फिर 8 को डिवाइजर बना दिया, 16 को, जो 16 डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दिया 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। तो क्या कहते थे, HCF। तो यही है
लेकिन लिखने का तरीका हमारा बदल गया। इस तरह से नहीं करेंगे, माइंड इट, इस तरह से सवाल को नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप चाहो तो इसका हेल्प ले सकते हो स्टेप को लिखने में, कि पहले स्टेप में क्या आएगा, 64 इज इक्वल टू 24 इंटू 2 प्लस 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 24 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 8। एंड थर्ड स्टेप में क्या आएगा, 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। और जहां 0 आया वहां का जो डिवाइजर है वही हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एल्गोरिदम ये हुआ, ये एल्गोरिदम हुआ। हमने क्या किया, इस स्टेप में एल्गोरिथम को लगाया, है ना, इस तरह से। समटाइम्स इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा आपको, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया कि कोई दो नंबर दिया, कहा कि अगर इन दोनों नंबर का HCF ऑफ 64 24 जो है, अगर सपोज कर लो 16x प्लस कुछ करके 8y के रूप में लिखा जाए, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो होना क्या है कि इन दोनों का HCF का स्टेप्स आपको ले लेना है ना। और स्टेप जैसे हमने इसमें क्या स्टेप लिया वो देखो, क्या करा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ HCF ऑफ 64 एंड 24 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 16x प्लस 8y। देखिए हमारे इस स्टेप में कहीं ऐसा अगर आया है तो चेक करते हैं। देखिए इस स्टेप में तो 64 24 ऐसा है, यहाँ पर 8 आया है। देखिए, लेकिन HCF तो 8 होना चाहिए ना, HCF तो 8 है, तो 8 को हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ 16 एंड 8। तो हाउ कैन यू राइट इट, हम लोग आगे कोई क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। इसके पहले हम लोग कोई दूसरा चीज सीखें, एक चीज और हम लोग सीख लेते हैं यहीं पर, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कर लो 64। आपने ये चीज देखा होगा, 64 2 से किया 32, 2 से किया 6, 2 से किया 8, 2 से 4, 2 से ऑल आर प्राइम। तो फैक्टर ट्री जो है प्राइम नंबर के, जैसे 64 स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 32, फिर 32 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 16, फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आया 8, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 4, और फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 2। ये फैक्टर ट्री। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको ले लूं, और कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, तो 2 का केवल 2 इसमें आया। अब मैं इसको लेके चलता हूँ, सपोज कर लो 1 1। ओके, सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे 2, क्या आएगा 2 टाइम्स लगाएंगे, इट्स विथ 56, फिर 2 से ही चलेंगे तो क्या आया 28, फिर 2 से चलेंगे क्या आएगा 14, फिर 2 से चलेंगे क्या आएगा 7। नाउ 7 इज अगेन प्राइम नंबर, सो हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। और इस 112 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 7, इज इट और नॉट, सोचने वाली बात। तो इस तरह इसको कहते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है ना। अब इसमें भी आपके क्वेश्चंस अगर आ गए विजुअल, तो क्या होगा, कहीं 2 जगह से आपका गायब कर देगा। मान लो इसको गायब कर दिया, ठीक, यहाँ लिख दिया कुछ, और मान लो आपको यहीं पर गायब करके इसको भी गायब कर दिया, ठीक ना। और इन दोनों जगहों पे वो लिख दिया A and B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B। देखो पहले हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों का जो इनटू है, मतलब इन दोनों का इनटू वो हमेशा ये आएगा। A की वैल्यू निकालनी होगी तो आप 56 2 जा
112 लिख देंगे। फिर b को निकालना हो, b को अगर निकालना हो, या तो 56 को 2 से डिवाइड कर दो तो, या तो इन दोनों को इनटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 28। ये इस जगह पे भी खाली हो सकता है। सपोज करो यहाँ पर अगर खाली हो गया, बहुत अजीब सा चीज, इसको ही खाली कर दिया, ये भी खाली था, ये भी खाली हो गया, यहाँ से तो आ गया ये 28। अब ये अगर नंबर हमारा सपोज सी था तो क्या करेंगे? ओके, तो 56 में क्या डिवाइड किए होंगे कि 28 आया होगा? तो 28 56 को डिवाइड कर दो, यू विल गेट 2। तो फिल इन द ब्लैंक में भी ये ट्री में आता है, ठीक ना? तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन हम करके लास्ट में एंड करते हैं इस वीडियो को, कि प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus I think 1 था या 2 था, 9m plus 2 होगा, सॉरी 9m plus 2, 9m plus 8, 9m plus 1 and 9m plus 1, or 9m plus 8, where m is an integer, where m is any some integer, any some integer। अलग अलग जगह पे m की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना? सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सम इंटीजर। इसके पहले भी क्वेश्चन था एक स्क्वायर वाला, वो मैंने छोड़ दिया है, इसके क्या बना लोगे? क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कि let a be any positive integer, और कोशिश करना है कि हम क्या चूज करें। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर हम लेते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो a इज इक्वल टू आइदर m लेना हम लेंगे 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2 और some integer q। अगर कोई नंबर है, इंटीजर है, उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो यही 3 फॉर्म में से कोई होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस इफ a इक्वल टू 3q, व्हाट इज इट्स क्यूब? a क्यूब क्या होगा? तो 3q का क्यूब, दैट इज 27q क्यूब, and it can be written as 9 into 3q cube. Can I write it as 9m, where m is equal to 3q cube is an integer? क्यों? ये q आपका इंटीजर है तो q का क्यूब भी इंटीजर होगा एंड उसका 3 मल्टीपल जो है वो भी इंटीजर होगा। So here m जो कि 3q cube है is an integer. So the cube of a is in the form of 9m, where a is what? 3q। a को हमने क्या लिया हुआ है? 3q के फॉर्म में, बट a is 3q है ये जरूरी नहीं हो, 3q plus 1 के फॉर्म में भी हो सकता है। So now moving towards the next one, we are going to take if a is 3q plus 1, then what? a becomes 3q plus 1. Again you have to do a cube, 3q plus 1 का whole। Now what is a plus b whole cube? It is a cube plus 3 into a square into b plus 3 into a into b square and plus b cube, यही है। तो e cube हमारा जो है इस फॉर्मेट में आता है। देखिए इन सभी जगह से आप 3 कॉमन ले सकते हैं या 9 कॉमन ले सकते हैं, जो जरूरत है इसकी। 3q cube 27q cube, अगेन 3 square into 3 27q square plus 3 into 3 9q and plus 1। Here we have 4 terms, out of which first 3 terms contain 9 as a factor,
So we just take it as 9 common. First 3q cube, second 3q square, and last cube, and then plus 1. Can I write it as 9m plus 1, where m जो है हमारा यहाँ पर पहले स्टेप में था 3q क्यूब, अब ये हो गया 3q क्यूब plus 3q square and q plus q is an integer. Whether it is an integer or not, you have to say that. Yes, it should be. q integer है तो उसका क्यूब, उसका स्क्वायर सब इंटीजर होगा, और चूंकि 3 मल्टीपल है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, all these 3 terms are integer, so sum of the integers is always integer, the whole is an integer. So again m is an integer, or here in this case when a is in the form of 3m plus 1, like 4, like 7, like 10, उसका क्यूब करेंगे तो 9, 10 का क्यूब करोगे तो 1000. अब 1000 क्या है? 999 plus 1, यानी 9 into 111 plus 1. So उसका क्यूब 3m plus 1 के फॉर्म में हुआ. नाउ अभी भी हमारा सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है. एक और केस है भाई, a तो 3m plus 3q plus 2 के भी फॉर्म में हो सकता है. देन व्हाट? नाउ स्लाइड इज इन, सो वी जस्ट रब इट. ओके, क्लियर है? तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हो गया, now the next part is a अगर हमारा 3m plus, सॉरी 3m नहीं 3q था ना, 3q plus 2 हो तब क्या? a क्यूब 3q plus 2 का होल क्यूब. ओके, सेम थिंग, a क्यूब 3 into a square into b, 3 into a into b square and b cube. Okay. 27q cube, 27, and here it is 54q square, 3 3 is 9, 4 is 36q, and then 8. What do you find? That the first 3 terms contain 9 as a factor, but last one is 8. Okay. So last में क्या करेंगे? 9 हमने कॉमन ले लिया, 3q क्यूब हो गया, यहाँ पर 6q स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 4q हो गया, और इन सब से हमने 9 को ले लिया है बाहर, और लास्ट में 8 बचा. So can I write it is 9m plus 8, where m is what? m is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q is an integer. Is an integer. So what we have proved in all the cases, whether a is either in the form of 3q or in the form of 3q plus 1 or in the form of 3q plus 2, its cube, इसका जो क्यूब है, पहले वाले का जो क्यूब था वो पता चला कि वो 9 के मल्टीपुल में है. इसके पहले वाले स्लाइड में जो था वो हमने दिखाया था, वो 9m plus 1 के फॉर्म में था, और ये लास्ट वाले में 9m plus
8 के फॉर्म में हुआ. So cube of any integer is either in the form of 9m when it is in the form of 3q, or either cube of that number in the form of 9m plus 1 when it is in the form of 3q plus 1, and when the number is in the form of 3q plus 2, then its cube is in the form of 9m plus 8. So this is the last question of the very first exercise, I think, of NCERT. I have done it. Okay. So next you will find the next video.